Pastor Joseph and Pastor Asad. Thank you so much. Praise the Lord. Okay. So we're gonna have Bible school, huh? Yes. Yeah, I thought we are canceling it, huh? Yeah. I thought because everybody busy in Easter holidays, so I just checked with my assistant pastor. He said he already invite everybody, so I said okay, let's do it. Okay, good, because I was telling Romis and everybody, sorry, canceled. But You can invite them. You already informed them. I messaged them right now. So, but anyways, let's. Yeah. So today I want to go to the New Testament. Okay, New Testament. We've been, Pastor Shibeli. Actually, I just talked to him. He just arrived to Malawi in Africa. Okay. You know this country, Malawi? No, I never heard. Yes, I know. I sent one missionary from OM side. The young girl's 24. She's in Malawi. So Pastor Shibeli just landed today. Amen. Okay. And I saw the pictures. Our team. Some of the guys that received him, they are my old friends. We went to Bible school together. You want to share, Pastor Joseph? You want to share screen? I can make you co-host. You want? Okay. No. Translate what I said. It's okay. पास्टर शुबैले आज ही मलावी एक मुल्क है अफ्रीका का, उसमें उन्होंने लैंड किया है और वहां पर कुछ हमारे जो पुराने दोस्त थे उन्होंने उनको रिसीव किया है एयरपोर्ट से. Yeah, so he safely arrived, and it's just amazing that some people dare to travel these days. वो सलामती से वहां पर पहुंच चुके हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोगों को अभी भी सफर करना पड़ता है खिदमत के लिए. But I think it's amazing that we can do that. We can have faith to do that. Some of us have faith to stay home. Some of us have faith to go. Yeah. कुछ लोगों का ईमान होता है, ये मानना होता है कि हमें घरों में रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ईमान है कि उन्हें अपनी खिदमत जारी रखनी चाहिए. Yeah, so I was, we had a very quiet Easter here, not like in Pakistan. यूरोप में बड़ा संजीदगी से इस साल जो है वो ईस्टर को मनाया गया है. I really miss, Pakistan and the way, Pakistanis are totally walking with Jesus through these steps of Easter, that leads to Easter. मैंने पाकिस्तान को बहुत मिस किया है, खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को, किस तरह से उन्होंने जुलूस निकाले और सारा कुछ वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने ईस्टर को सेलिब्रेट किया है. Because it's true. क्योंकि ये एक सच्चाई है. We are in Christ. जब हम यीशु मसीह में होते हैं and Christ is in us, और खुदावंद यीशु मसीह हम में होता है, and we can walk with him, we can identify with him. हम उसके साथ चलते हैं और वो हमारी पहचान बनता है. And it's amazing when we are in a place, we put ourselves in the place, by reading the Bible, by reliving these stories, putting ourselves in the place where Jesus was. ये बड़ी खुशनुमा बात होती है और बड़ी अच्छी बात होती है जब हम अपने आप को उन्हीं ही हवाला जात में और उस जगह पर ले जाते हैं जिस जगह पर यीशु मुनादी करता था या जिस तरह से वो मुनादी करता था. Because Jesus really teaches us. खुदावंद यीशु मसीह वाकई हमें बताता है और हमें सिखाता है और हमें लीड करता है. He leads us by example. वो एक मिसाली तौर पर हमें सिखाता है. Yeah, I love the Apostle Paul. मैं पौलुस रसूल की खिदमत से बड़ा मुतासिर हूं और उसका बहुत प्यार करता हूं. Because we see how Paul is pointing to Jesus, वो किस तरह से यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है और यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाता है. I learned from him, and this is, what I'm teaching you, what I seen, what I heard.
what I मैंने उससे learned. सीखा है और जो कुछ मैंने उससे सीखा है मैं वो आपको सिखाऊंगा जो कुछ मैंने उससे सीखा है। I know who I have believed. मुझे ये पता है कि मैं किस पर ईमान रखता हूँ। So today I want us to go to the Gospel of Luke. आए मेरे साथ मिलकर निकालिए लूका की अंजील। And in Luke chapter 19, 19वां बाब, we have this story from verse 12 to 27. 12वीं आयत से 28वीं आयत तक एक स्टोरी मिलती है हमें। And this is how this story starts. A certain nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself and then returned. I go in Urdu. Yes. Okay. Luke 19:12. बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। Should I go all? No. Okay. Who is this nobleman? ये शरीफ आदमी जो है ये कौन है यहाँ पर? What do you think? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Jesus. It's Jesus. यीशु, ये यीशु है। यीशु है बेशक। Where is this far country? The far country where he went. Where is that country? वो दूर दराज का मुल्क कौन सा था जहां पर वो गया? ये कौन सा मुल्क है? Heaven. हेवन, Heaven. आसमान। Asman. That's आसमान। right. And you know, आसमान था वो। this Yeah. is the story. You know, Jesus goes to heaven, and where is Jesus now? यीशु मसीह आसमान पर गया और अब आप देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह अब कहां पर है? He is in heaven, and he will return from heaven, right? वो आसमान पर है और आसमानों से जल्द आने वाला है। And this is so beautiful. ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है यहाँ पर। And you know, we can read the story, but I just wanted to start with this introduction. हम ये सारी कहानी पढ़ सकते हैं लेकिन मैं इस तारुफ के साथ इसको शुरू करूंगा। The next verse I want to read, it's in the Gospel of John, chapter 14. दूसरी जो आयत है वो यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, And from verse 2 to 3, verse 2 and 3. दूसरी और तीसरी आयत। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। Right, Jesus says, I go to prepare a place for you because I want you to be in the place where I am. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, जहां पर मैं हूं वहां तुम रहोगे। It's beautiful. बहुत खूबसूरत ये बात है। You know, Jesus thinks of us. and खुदावंद यीशु prepares- मसीह हमारे बारे में सोचता है और वो तैयार करता है। Yeah, and his promises are yes and amen. उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, आमीन। And he says, I go and prepare this place, and I'm ready to receive you. I you know, to receive you. वो to ये my- कहता है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं तुम्हें वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। Because this is my will, this is my purpose. वो ये कहता है कि मेरी ये मर्जी है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें लूं। Jesus says that where I am, there you may be also. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। So my question for this class today, तो मेरा आज का सवाल जो है वो इस क्लास से है, where are you today? आप कहां पर हैं आज के दिन? Where are we today? हम कहां पर हैं आज के दिन? हम अपने अपने घर में हैं। He says we are in our houses.
Well, spiritually speaking, Yeah. We are in the Yeah. God hands. yeah, spiritually speaking, this is the Uh-huh. verse. हम्म। That where I am, there you may be also. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। You remember, this is the story. आपको याद है एक कहानी? This man called 10 of his slaves. 10 of his slaves. उसने अपने 10 गुलामों को, 10 नौकरों को बुलाया। And he gave them 10 minas. उसने उनको 10 अशरफियां दी And he said to them, और उनसे कहा, here is your mina. यहाँ ये है आपके अशरफियां, Do business with this till I come back. इसके साथ लेन देन करो, बिजनेस करो इसके साथ और वापस आना बाद में। In the King James version, in the King James version of the English Bible, it says, occupy till I come. इंग्लिश का जो वर्जन है, इंग्लिश की एक बाइबल है जो किंग जेम्स उसका नाम है, तो उसमें लिखा है कि अपने आप को मसरूफ रखो जब तक मैं ना आ जाऊं। Be busy. That's what that means. Be busy. अपने आप को मसरूफ रखो, बिजी रहो। You know how much 1 mina worth? आपको पता है कि एक अशरफी की कीमत क्या है? The value of a talent that was given to these servants, to these slaves, was equivalent to 20 years of labor's wage, like what you would collect for working 20 years at the workplace. Of one coins. Yeah, one उस talent. एक अशरफी या उस एक अशरफी की जो कीमत थी उस वक्त के बराबर, वो 20 साल अगर आप काम करते हैं तो वो 20 सालों की मजदूरी एक अशरफी थी। Ephesians 6:6 says we are slaves of Christ. इफिसियों 6:6 की कहता है कि हम मसीह यीशु के गुलाम हैं। We are like these slaves that received something. हम वो गुलाम हैं, हम वो मजदूर हैं जिन्होंने कुछ यीशु से पा लिया है। We received the gospel. हमने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को रिसीव किया है। We received grace. हमने उसके grace. हमने फजल पर फजल को पा लिया है। We received so many things from God. हमने खुदावंद से बहुत सारी चीजों को हासिल कर लिया है। And his will is to be for us to be busy with what we have received until he comes. और उसकी मर्जी ये है कि जो कुछ हमने उससे हासिल कर लिया है उसमें लेन देन करते रहें और उसमें मसरूफ रहें जो कुछ उसने हमें दे दिया है। Slaves of Christ. खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम। These are true believers. ये ईमान The slaves of Christ. पास्टर असद आपका माइक म्यूट हो गया सर। खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम। Yeah, we do the will of God from our heart. हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी पूरी करते हैं अपने सारे दिल से। It's interesting. ये बहुत अजीम बात है। We live in this world, but we are not of the world. हम इस दुनिया में, इस जहान में रहते हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। We are citizens of this world, but also we are citizens of heaven. हम इस दुनिया के शहरी हैं लेकिन हम आसमानी शहरी भी हैं इसके साथ-साथ। And there are people that will receive and that there are people that will reject. वहां पर लोग होंगे जिनको वेलकम कहा जाएगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रद्द और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Right now there is this big movement of, there is no God. God is dead. आजकल एक बड़ा रवाज है कि कहा जाता है कि कोई खुदा नहीं है और ये बड़ी एक तहरीक चल रही है कि कोई खुदा नहीं है। I don't know if you've seen the news. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने खबरें सुनी हैं या नहीं कभी। I'm sure Richard's seen this, in Canada, police coming to church with guns and stuff, trying to stop services.
मुझे अंदाजा है कि भाई रिचर्ड को इस बात का आइडिया होगा कि कनाडा में कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने चर्चों के अंदर गन्नों के साथ इबादत को रुकवा दिया। Can you imagine during Easter, the police is walking from church to church to tell them to go home? क्या You know, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईस्टर के मौके पर पुलिस जो है मुख्तलिफ चर्चों में जा रही है और उन्हें मना कर रही है कि सर्विस ना करो। in a country where there is a law that they cannot interrupt the service, you know, by law, they cannot interrupt the religious service. उस मुल्क का कानून है कि आप दुआ के वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन ये इस बार ऐसा हो गया है। And I was just so, you know, I was so proud that, you know, और there मुझे are इस पर बड़ी believers that stand up for Christ, you know, and they say, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि ईमानदार इस बात के लिए खड़े हो गए हैं। and we are servants. और हम खुदावंद के खादिम हैं। God has given us this talent, and there will be one day an evaluation of what we do with these talents. हमारे पास ये टैलेंट जो हमें दिया गया है, इसका एक दिन हिसाब होगा, जो टैलेंट हमारे पास है। Jesus is not here now. खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त यहाँ पर नहीं है। I mean, he's here in us, you know, he's living in वो us, हम में रहता है, but he's not physically that way, you know, in person here. लेकिन वो जिस्मानी तौर पर या शख्सी तौर पर हमारे दरमियान अब नहीं रहा। But he promised that he will come back. लेकिन उसने ये वादा किया है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। And when he comes back, we have to give an account how we did business, how were we occupied. और जब वो वापस आएगा, हमें हिसाब देना पड़ेगा कि हमने अपना लेन देन किस तरह से रखा है और हम किन कामों में बिजी रहे हैं। You know, you remember the story. One of the servants said, "Master, your mina has made me 10 minas more." आपको याद होगा कि एक नौकर ने कहा कि मैंने एक तोड़े से 10 तोड़े बना लिए हैं। And he said to him, "Well done, good slave." और उसने उसे कहा कि बहुत अच्छा, जबरदस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। Because you have been faithful over in a very little thing. क्योंकि तू थोड़े में बहुत वफादार रहा था। Be in authority over 10 cities. अब ये जो 10 तोड़े हैं, ये तेरे हुए, इन पर तेरा इख्तियार है अब। The second one came, he says, "Oh, master, your mina made 5 minas." और दूसरा है, उसने कहा कि मास्टर, मैंने 5 तोड़े उससे बनाए हैं। He said to him, "And you are to be over 5 cities." उसने उससे कहा कि तू 5 का मुख्तार होगा। You know, these were the positive rewards. ये एक मुस्बत बात थी उनके लिए। For 2 of the servants, based on their faithfulness to properly use what Christ has given to us. जो कुछ यीशु मसीह ने उन्हें दिया था, उन्होंने उसको डबल कर लिया था। I would say Christ has entrusted us with many things. खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर भरोसा किया है बहुत सारी चीजों में। I was thinking about the Holy Bible. मैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के बारे में सोचता हूँ, बाइबल के बारे में। You know, 200 years ago, Bibles were so rare. Only the very rich people would have printed Bibles. 2000 साल पहले खुदावंद का कलाम बहुत गिरा कदर था। 200 years ago. 200 साल पहले खुदावंद का कलाम बहुत गिरा कदर था। Yeah, and today we can have Bibles in our homes. We can have a personal Bible. और आज हमारे घरों में खुदावंद का कलाम है, पर शख्सी तौर पर हमारे पास बाइबल है। Be faithful. ईमानदार रहिए with what God has given you. जो कुछ उसने आपको दिया, उसके साथ ईमानदार रहिए। Faithfulness with the Bible means that we are not just having it on the shelf, just sitting on the shelf and we just have it there. बाइबल के साथ वफादार रहने ये नहीं है कि आपकी शेल्फ के, आपकी अलमारी के ऊपर आपकी बाइबल पड़ी हुई है, ये कोई ईमानदारी नहीं है। But we read the Bible and we live by every word of the Bible.
बल्कि हम बाइबल को पढ़ते हैं और उसके एक एक हरफ की वजह से हम जिंदा रहते हैं, not in a religious way, ना सिर्फ मजहबी तरीके से। but we have to feed ourselves the word हमने of इसमें God. से हमने इसमें से खाना है, खुदा उनके कलाम को हमने खा जाना है। And when we are filled, when we learn, when we walk with God, we can feed others. Amen. जब हम खाते हैं और जब हम सीखते हैं, तो इसी तरह से हम दूसरे लोगों को भी ये खुराक दे सकते हैं खुदा उनके कलाम में से। That's how we can explain these positive rewards for the two first servants, you know. They were हम faithful. इस तरह से पहले जो दो मजदूर जो नौकर थे, उनको इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि उन्होंने खुद खाया और दूसरों को भी दिया। They actually made more minas. दर हकीकत उन्होंने बढ़ाया अपने उस कारोबार को। You know, in our case, mina could mean evangelizing. In our case, mina could mean, you know, helping someone that is in need and praying with them. हमारे तोड़े से मुराद ये है, हो सकता है हमारे पास अंजील की मुनादी करने का तोड़ा है, किसी भूखे की खिदमत करने का, कलाम सुनाने का तोड़ा है हमारे पास, और इसको बढ़ाना है हमने। You know your life, you know your circumstances. It can be a cup of cold water that we give. आप अपनी जिंदगी को जानते हैं, और ये एक ठंडे पानी के प्याले की मानिंद है जो आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। You know, God is not looking for the big things, the big servants, the big things to happen. खुदावंद कोई बड़े बड़े काम करने के लिए आपको नहीं कह रहा है, और ना ही वो चाहता है कि कोई बड़ा खादम आए और वो कुछ करे उसके लिए। But as Jesus says in this parable, you were faithful in a little thing. खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील में कहता है कि तुम वफादार रहे छोटे सी उस चीज में। I love that. मैं इस कहानी से बहुत प्यार करता हूँ। Because maybe Joseph Marion cannot do something big for God, but for sure he can do many little things for God. जोसेफ मैरियन हो सकता है खुदा के लिए कुछ बहुत बड़ा ना कर सकता हो, लेकिन खुदावंद छोटा पसंद करता है। You know, loving our family. Loving our family, our own family. अपने खानदान को प्यार करना, spending time with our family. अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना, yeah, spending time with our neighbors sometimes. अपने हमसायों के साथ गुफ्तगू करना, कुछ वक्त गुजारना। You know, that's what Jesus said. खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा है। You know, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से मोहब्बत रख। Good, yeah. ओ, ये बड़ी अच्छी बात है ना? But don't forget the second part, love your neighbor. लेकिन दूसरी बात भी याद रखिए कि अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार करना है। Now that's hard. ये थोड़ा मुश्किल है। But that's the little thing. लेकिन ये छोटी सी बात हो सकती है हमारे लिए। On Monday morning, पीर की सुबह को, we went 4 families. हम चार खानदानों में गए। You know, these are families with children. You know, I have 6 kids, you know, 3 kids, somebody has 3 kids, 2 kids, 3 kids. So, you know, our families came together. जैसे कि पास्टर जोसेफ के 6 बच्चे हैं, और किसी के 3 थे, और किसी के इसी तरह से मुख्तलिफ, और 4 खानदान इकट्ठे मिलकर जमा हो गए। We had a lot of children. और बहुत ज्यादा बच्चे हो गए उस जगह पर। But we said, for Easter morning, for Monday morning after Easter, we want to go out to nature, want to go out just to be together and sing together, just love each other, be together, you know. हम मंडे की मॉर्निंग को, यानी पीर वाले दिन, हमने सोचा कि हम इकट्ठे ये सारे खानदान मिलकर जाएंगे और नेचर को देखेंगे, फितरत को, उसका मजा लेंगे। Little things we can do. छोटी चीजें हम कर सकते हैं। God sees them. और खुदावंद उनको भी देखता है। And he's interested in faithfulness. और खुदावंद हमारी वफादारी में दिलचस्पी रखता है।
Now let me tell you the third one. The third one is interesting. मैं आपको तीसरे के बारे में बताना चाहता हूँ कि तीसरे के साथ क्या हुआ। This other slave came and said, "Master, behold your mina. I have your mina." तीसरा नौकर आया और उसने कहा, मालिक देखो मेरे पास तुम्हारा तोड़ा जो है वो वैसे का वैसा ही है। I put it away in a handkerchief. I hid it. मैंने उसको रुमाल में बंद करके छुपा दिया, रख दिया कहीं। I was so afraid of you मैनू बड़ा डर लगदा सी तेरे तो, because you are an exacting man. क्योंकि तू बड़ा सख्त आदमी था। You reap what you did not sow. तू वहां से काट लेता है जहां तूने बिखेरा नहीं है। And you know, क्या आप he said, जानते हैं? he said to this slave, he said to him, और उसने उस नौकर से कहा, by your own words I judge you. You मैं worthless तुम्हारे slave. जो कुछ तुमने कहा है उसी को मैं पूरा करूंगा। Did you not know that I'm an exacting man? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ Reaping what I did not sow? और मैं वहां से काट लेता हूँ जहां मैंने बोया नहीं है। Then why didn't you put this money into the bank? तो फिर तुमने क्यों इस पैसे को बैंक में नहीं डाल दिया था? And after I have came, you could have bring me the interest. और जब मैं वापस आता तो उसका जो सूद था वो तुम मेरे पास लेकर आता। And you know what this master said? और फिर उस मालिक ने क्या कहा? Take his mina away इसका तोड़ा जो है वो इससे वापस ले लिया जाए and give it to the one who has 10 minas. और उसको दे दो जिसके पास 10 हैं। You know, this is a negative reward, right? ये एक नेगेटिव रिवार्ड है उसके लिए। Yeah, it's like unfaithful servant for unfaithfulness. ये कोई ईमानदार नौकर नहीं था। Yeah, and it's interesting that the people that see this happen, I mean, in the story, they say, "Oh, Master, that guy already have 10 minas. Don't give it to him." और वो जो देखने वाले लोग थे वो ये कह रहे थे कि दूसरे शख्स के पास ऑलरेडी 10 तोड़े हैं, मालिक इसको नहीं देने चाहिए हमें। And then Jesus shocks them even more. He says, Jesus shocks them even more. और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें और ज्यादा हैरान कर दिया। I tell you that to everyone who has more be given. और खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहता है कि जिसके पास है उसे और ज्यादा दिया जाएगा। And to the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Wow. और जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। You know, I never understood this verse. मुझे इस आयत की अभी तक समझ नहीं लगी। Maybe you can help me to understand. आप मेरी मदद कर सकते हैं इस आयत को समझने के लिए। Yeah, because you know Jesus, you know, like there are these moments in this parable, in this story that, wow, my heart stops, you know. इस तमसील में ऐसी कुछ बातें हैं जिससे मेरा दिल जो है वो रुक सा जाता है जब मैं इसको पढ़ता हूँ। And this parable also reminds us of the world today. ये तमसील हमें आजकल के बारे में, इन हालातों के बारे में भी बताती है। According to the research, church membership is dropping like to 50% in America, in Europe. एक अंदाजे के मुताबिक चर्चों के अंदर 50% जो आबादी है, लोग जो है 50% कम हो गए हैं। A lot of people, they don't bother to go to church anymore. They haven't been in a church for 1 year. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप में और अमेरिका में 1 साल से चर्च ही नहीं जा रहे। And you know, this is leading to unfaithfulness. और ये हमें ईमानदारी की तरफ लेकर नहीं जा रहे। This leads to the lack of fellowship. ये हमें खुदावंद की रफाकत से दूर कर रही है ये बात। It is kind of like the story we just, you know, we are talking about this parable of Jesus.
ये वही तमसीला जो हमने खुदावंद यीशु मसीह की अभी पढ़ी है और उस पर बातचीत की है। You know, you can read it for yourself in Luke 19. This is the homework. आप लूका की इंजील 19वें बाब को घर जाकर पढ़ सकते हैं, ये आपका होमवर्क होगा। You know, these guys just don't want this master to return. ये जो नौकर थे ये चाहते ही नहीं थे उनका कि उनका मालिक वापस आए और उनको देखे। Oh, he went to a far country. वो दूर के मुल्क में चले गया है, बहुत दूर चले गया वो, He's not coming back. और उसने वापस कोई नहीं आना होना। But Jesus said he's coming back. लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि वो जरूर वापस आएगा, And I can tell you for sure he's coming back. और मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जरूर वापस आएगा। Two things are sure. दो चीजें कंफर्म हैं, You were born वो पैदा हुआ and you will die. That's for sure. और वो मर गया। I don't know anyone who was not born, and I don't know anyone that will not die. Like everybody has these certainties. मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता कि जो पैदा हुआ हो और फिर उसके बाद जो है वो मर गया हो। ये सबके साथ होता है। But there is a second certainty, a third लेकिन certainty, लेकिन एक तीसरी बात भी है, and I love this. और मैं उसको जानता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। I want him to rule over me. I want him to be my boss, my leader. मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का इख्तियार रहे, उसके पास रहे, और वो मेरा लीडर बन जाए, मेरा बॉस बन जाए। Yeah, that's the difference. ये बहुत बड़ा फर्क है उसमें। Yeah, Christ will return, खुदावंद यीशु मसीह वापस आने वाला है, and his return should motivate us to work for him. और वो ये चाहता है, वो हमें उभारना चाहता है कि हम उसके लिए खिदमत को जारी और सारी रखें, To live devotedly for him, अपने आप को वक्फ कर दें उसके लिए, उसकी खिदमत के लिए, to even give some of our resources, or I would say all of our resources for him. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने जो कुछ हमारे पास है सब कुछ यीशु को दे दें। Yeah, this is what Jesus is saying here, you know. यीशु मसीह यही यहाँ पर कह रहा है। You know, be occupied till I come. Keep working hard till I come. Don't be lazy. सख्त मेहनत करते रहें जब तक मैं आना जाऊं, अपने आप को बिजी रखो जब तक मैं आना जाऊं, सुस्त नहीं बनना। Because there are two other realities. दो और भी हकीकतें हैं, Two kinds of believers. दो किस्म के ईमानदार हैं। One is believers that are occupied, they are busy till Jesus comes. एक किस्म वो है जो अपने आप को बिजी रखे हुए कारोबार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने तक। They are busy with the work of God. वो खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हैं। And there are those who are not busy with the work of God. और दूसरी किस्म वो है जो खुदावंद का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। So this class is about who are you? Which one are you? आज की क्लास ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन हैं आप? Are you faithful? क्या आप ईमानदार हैं? With God's blessings and his resources, you take God's blessings and his resources. Are you faithful with these things? खुदावंद की बरकतें आप पर हैं, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ उसने आपको दिया है, क्या आप उसके साथ वफादार हैं? Are you serving God with a pure heart, with your whole heart? आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी कर रहे हैं अपने सारे दिल से? Making his gospel, making his resources work for you and bring you in return 10 minas, 5 minas. अंजील की मुनादी कर रहे हैं और आप उसके पास 10 लोगों को, 5 लोगों को और ज्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं? Or are you like the servant who keeps his resources, his little mina for himself? और क्या आप उस किस्म के लोग हैं जो जिसने अपना तोड़ा जो है वो छिपा दिया और गुम कर दिया? Me, मैं, myself, अपना आप and I. और मेरा। You only think about yourself all the time. हम अपने बारे में सोचते हैं, मैं, मेरा, अपना।
हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। how can I survive? How can I do better? How can I do this? How can I do that? मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, अपने बारे में सोचते रहना हर वक्त। I love this. मैं इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ। We cannot buy our way into heaven. हम खुदा का जो रास्ता है आसमान पर जाने का, उसको खरीद नहीं सकते। Our salvation is only through Jesus Christ. हमारी निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। However, ताहम what we do on this earth, जो कुछ हम इस जमीन पर करते हैं, especially for God's kingdom, खास तौर पर खुदा की बादशाहत के लिए, will determine our rewards in heaven. उसका हमें बदला दिया जाएगा आसमान पर। Okay. I want to, bring it to a close. Let's read from 1 Corinthians पहला करंथियों chapter 3, तीसरा बाब verse 11 to 15. 11वीं से 15वीं आयत। पहला करंथियों तीसरा बाब 11वीं से 15वीं आयत। For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Christ Jesus. क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। This is spiritual talk. ये रूहानी बातें हैं, ये रूहानी आयत है। There are so many churches बहुत सारी कलीसियाएं, चर्चेज हैं that are built on another foundation. They are not built on the cornerstone, on Jesus Christ. उनकी अपने अपने ख्यालात हैं। बहुत सारी कलीसियां हैं जिनकी बुनियाद मसीह के कलाम की, यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है, उस बुनियाद पर नहीं है। There are so many ministries today in the world of Christendom. बहुत सारी कलीसियां हैं जो इस जहान की तरफ गुम हो चुकी हैं। They are doing great things for God, but their foundation is not Christ. वो यीशु मसीह की खातिर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेस है, उनकी जो बुनियाद है, वो यीशु मसीह नहीं है। And I love this. मैं इस बात को बहुत प्यार करता हूं और मुझे पसंद है। Apostle Paul says, पौलुस रसूल ये कहता है, no one can lay any foundation. और कोई दूसरी नींव नहीं है। There is a foundation already laid, and we want to build our churches, we want to build our Bible schools on this foundation and this foundation alone. हमारी बुनियाद रखी जा चुकी है और वो बुनियाद यीशु मसीह है, और हमने उसको उठाना है, उस बुनियाद पर काम शुरू करना है। The foundation is Jesus. और वो बुनियाद यीशु मसीह है। His words, his example. उसका कलाम, उसकी मिसाल है। His love, उसकी मोहब्बत हमारे लिए मिसाल है। Okay, let's read more from 1 Corinthians 3. This is beautiful. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is. और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। Because the day will bring it to light. क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, वो उस काम को बता देगा, और वो आग जो खुद हर एक Jesus talks about this. खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में बताता है, और पौलुस रसूल भी इसके बारे में बात करता है। Paul says it will be revealed with fire, and fire will test the quality. ये आग के दिन जाहिर होगा, और आग जो है उसका इम्तिहान लेगी। If what he has built survives, जो कुछ उसने जिस पर बुनियाद रखी थी, अगर वो ठीक है तो वो बाकी रहेगा और उसका बदला उसको दिया जाएगा। But if it burns, he will suffer loss.
लेकिन अगर वो जल जाता है तो उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। Very interesting. Paul says, he himself shall be saved, but बड़ी only, जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त बात है कि वो खुद तो बच जाएगा, only as one as escaping through fire. You know, the smell of smoke on your clothes when you run out from a burning house. जब आप एक घर में आग लगी हो तो आप आग से जलते बचते बचते भाग जाते हैं एक साइड कोने की तरफ। This is the example, a burning house. जले हुए घर की एक मिसाल यहाँ पर दी गई है। Everything will be burnt. I mean, everything will disappear. सब Everything कुछ will जाता रहेगा, सब कुछ fire. बर्बाद हो जाएगा, आग लग जाएगी, सब कुछ। But the gold, लेकिन जो अच्छा है, जो ठीक है, the silver and the costly stones, right? They will और survive. जो They सोना can- चांदी वो they can बच जाएगा, the test of fire. वो आग के इम्तिहान को पास कर लेंगे। Yeah. So I love this foundation, Jesus Christ. मुझे यीशु मसीह ने जो बुनियाद रखी है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। Yeah. He's my firm foundation. वो मेरी मजबूत चट्टान है। I wish that each of us मेरी ये ख्वाहिश है कि हम में से हर कोई would take Christ seriously, his word, his mission. खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बड़ी संजीदगी से लीजिए, उसके मिशन को, उसके कलाम को। When we recognize an opportunity that Christ gives, जब हम उसकी जो उसने हमें एक मौका दिया है, जब हम उसको पहचान लेते हैं, you know, that's why, you know, when you do Bible school, when you are drawing close to God's word and you desire God's word, that's an opportunity. जब आप बाइबल स्कूल में जाते हैं और वहां पर खुदावंद के कलाम के और ज्यादा नजदीक चले जाते हैं और ख्वाहिश आपकी बढ़ती जाती है कि हम उसके बारे में और जानें। You know, this in the parable, he said, occupy till I come to 10 of his servants. और इस तमसील में उसने कहा है कि उन 10 को कि जब तक मैं आने जाता अपने आप को मसरूफ रखो। Be busy with my mina, be busy with what I give to you. जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, जो तोड़े आपके पास हैं, उसके साथ मसरूफ रहो। Take what you have been given and multiply it. लो जो कुछ आपको दिया गया है और उसको बढ़ा दो, उसको यूज करो। That's what we are supposed to do with the gospel. ये कुछ हमें करने की जरूरत है बाइबल के साथ। We are not supposed to sit on the gospel, hide the gospel, you know, and, you know, guard it for ourselves. We are supposed to share it. हमने बाइबल को छुपाकर, लुकाकर, कच्छे मार के नहीं रखना, बल्कि मैंने और आपने इसको शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ। Okay, Matthew 4:4. मत्ती 4 बाब की 4 आयत। But he answered and said, और उसने उन्हें जवाब दिया, man shall not live on bread alone, कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, but on every word that proceeds out of the mouth of God. बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। I want to put my ear where the words of God are. मैं अपने कान को उस जगह पर धरना चाहता हूँ जहां पर खुदावंद का कलाम है और सुनना चाहता हूँ। I want to catch the word of God. मैं खुदावंद के कलाम को लेना चाहता हूँ, Eat the word of God. और मैं उसे Meditate the word of खा God. जाना चाहता हूँ, मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। That's what it means to be busy, to be occupied till he comes. ये है इसका मतलब कि बिजी रहना, कि हम उसके कलाम को खा जाएं, उसको समझें। Psalms 119 verse 105. Zabur. ज़बूर 119 105 आयत। ज़बूर Thy 119 word is 5। a lamp to my feet. Thy तेरा word कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है and a light to my path. और मेरी राह के लिए रोशनी है। Wow, Roshni. Oh, I love Roshni. I want, मुझे I love- रोशनी बहुत पसंद है। I hate the night. I hate it.
मुझे But I रात से love अंधेरे से नफरत है, लेकिन मुझे दिन से बहुत मोहब्बत है। when the sun is shining, when जब there is सूरज चमक रहा होता है, जहां बहुत ज्यादा रोशनी होती है, मुझे मोहब्बत है इस बात से। let's live in God's light. आए खुदावंद की उस रोशनी में जीना शुरू करें। Let's listen for his words, आए उसके कलाम को सुनना शुरू करें, and we will not be ashamed when he comes. और Amen. हमें शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ेगी जब वो आएगा। Amen. Richard said it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Pastor Joseph, you done? Yes, I'm done. Love you. Amen.